as we have discussed off the camera, that we want this podcast to be a masterclass for CUET. So for all the students and the parents who are watching this podcast, उनको पूरा A to Z complete information इस podcast के जरिए मिले. दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपका टेस्ट का सिलेबस फिक्स है, पैटर्न फिक्स है, आप उसमें अच्छा करो और आप एडमिशन. तो SRCC में जाने के लिए बच्चे को 800 में से अराउंड 780 प्लस लेके आने. Okay. इसमें मैम मेरे 3 पार्ट है. वन इज द लैंग्वेज पार्ट, Okay. सेकंड इज द डोमेन पार्ट एंड थर्ड इज जनरल टेस्ट पार्ट. Sorry, I'm just cutting you in between. क्योंकि बच्चा पहले तो 12th के एग्ज़ाम से ही एक बर्डन सम लेके आया कि मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम है, थोड़ा करियर आगे बनाना है मुझे इसके बेसिस पे ही, तो ये भी स्टडी करना है. देन CUET के लिए अलग से पढ़ाई करनी है. देन आई हैव ऑल्सो हर्ड दिस थिंग कि जो पोर्शन डिलीटेड होता है दैट टू इज़ अ पार्ट ऑफ CUET का एग्ज़ाम. 2 मार्च को बच्चे को ये पता चल रहा है जब नोटिफिकेशन आया है कि सिलेबस चेंज हो. ऑल्दो एग्ज़ाम का जो इंटेंट है, एग्ज़ाम का जो नेचर है वो अच्छा है. अच्छा है, करेक्ट. बट ईयर बहुत बच्चे सिर्फ एग्ज़ाम इसलिए नहीं दे पाए बिकॉज उनका फॉर्म गलत नहीं हो हो. पाया. अच्छा. यू सरप्राइज टू नो इन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज लोगों को CUET नहीं पता है. अच्छा सर, अभी आपने CUET का एग्ज़ाम पैटर्न का आई थिंक यू हैव एक्सप्लेन द कंप्लीट थिंग. इंस्टीट्यूट में लोग मतलब पेरेंट्स का एक एटीट्यूड होता है कि नहीं एडमिशन के लिए बोल रहे हैं. नहीं, करेक्ट. हाँ. दैट इज द सेकंड थिंग. हाँ. आप फर्स्ट आके जस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस. Process. ऐसा नहीं है बच्चे कर नहीं सकते. वहाँ आपको पता ही नहीं, पता चला आपने जो कम पढ़ा था वहाँ से 3 क्वेश्चन आ गए. डेफिनेटली दिस ईयर इट विल इम्पैक्ट द मेरिट. My school teachers say to focus on boards, but CUET is also important. What should I do? हाँ. अगर किसी बच्चे का क्लैश होता है जी. ना स्कोर, सपोज अगर CUET किसी ने प्रिपेयर किया, उसने जनरल टेस्ट भी प्रिपेयर किया, जी. गॉड फॉरबिड कि अगर उसका ड्रीम कॉलेज नहीं है, प्लस MCQ नेचर का पेपर आए, जी. वहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, तो लैंग्वेज की वजह से बहुत बच्चे अच्छा नहीं कर पाते. CUET is one of the exam. You have many other exams. So just don't take pressure. Believe in yourself. Namaste India and welcome to the another interesting episode of The Trending Conversation. And today we are going to talk about CUET exam. It's a crucial milestone for class 12 students. And if you are preparing for CUET exam, then this episode is for you guys. So, joining us today is an educator and a CUET expert. He is a mentor. He is an author of the Modern World History book with years of experience in the field of teaching. His specialization is in history and current affairs. He has been a qualified multiple competitive exams as UPSC mains and PCS exam. Let's welcome Mr. Vidur Sharma. How are you, sir? I'm good, ma'am. So good to have you. And as we have discussed off the camera, that we want this podcast to be a masterclass for CUET. So for all the students and the parents who are watching this podcast, उनको पूरा A to Z complete information इस podcast के जरिए मिले. And as a first thing, would request you to please share a short introduction about yourself. Alright. So my name is Vidur Sharma. I am working as currently with an institute that is IMS Yes. as the UG project head. So idea is here like in IMS we are training UG student for all the competitive exam, Correct. mainly CUET, IB MAT, BB entrances. Yeah. Or I can say any competitive exam except engineering and medical. So we are specialized in that. Right, sir. And IMS is training students from the company was established in the year 1977. So ever Oh, since we long are time. training students. And not only that, for many PG courses like CAT, we are training. So idea yahi hai that in this particular field we will like try to give our best Right. for the students. That's so good, sir. Okay, so what is your experience in this? Ma'am, I'm training student from 2018 onwards. Okay. So initially I started as an accidental teacher because I was preparing for my competitive examination. Right, sir. लेकिन उसके बाद over the period it is like my bread and butter now. Okay. So in Delhi only I have experience from 2020 onwards I'm in Delhi. Okay, sir. Yes, sir. That's so nice, sir. So, abhi, I think this CUET pattern started at the time of COVID, you know. So,
व्हाट एग्जैक्टली CUET इज ऑल अबाउट? थोड़ा सा आप उसके बारे में ब्रीफ करिए कि CUET है क्या? और मैम सी इंडिया में अभी 2020 से पहले अगर मैं बात करूँ जी तो जितने भी सेंटर यूनिवर्सिटीज़ में आपके एंट्रेंसेस हो मतलब जो एडमिशन होते थे लाइक टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी राइट सर, इट वाज एंटायरली अ परसेंटेज बेस्ड क्राइटेरिया। करेक्ट। अब क्या होता था कि आप अच्छे 12th में मार्क्स लेके आओ और आपको जैसी आपकी परसेंटेज होगी उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा, ओके, राइट। बट 2020 में आपको पता होगा इंडिया में एक चेंज आया, दैट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी। या एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक जो मतलब एक एजेंडा ये भी था दैट वी हैव टू मेक आवर हायर एजुकेशन सिस्टम बेटर। राइट, अब आपको हायर एजुकेशन सिस्टम बेटर करना है तो ऑब्वियस सी बात है वो जो स्टूडेंट इनटेक जैसा आ रहा है उससे बेटर होगा सबसे पहले। हाँ राइट, Then in 2021 they have introduced an exam called as CUET. CUET. हालांकि जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था that time it was CUCET, that is Center University Entrance Test. ओके, Initially ये सिर्फ सेंटर यूनिवर्सिटीज के लिए था, राइट, but now it is CUET, that is Common Common University University Entrance Entrance Test. That means इससे एलिजिबल मतलब जो बच्चा इसे क्रैक कर रहा है CUET को वो सिर्फ सेंटर यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, मैनी स्टेट यूनिवर्सिटीज, अच्छा, इवन मैनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अगर मैं रफली बोलूँ तो देयर आर अराउंड 250 यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया अप्रॉक्स Okay. जो कि CUET का स्कोर कंसिडर करें आफ्टर 12th। तो Okay. मैं 12th के बच्चे के लिए बोल सकता हूँ दैट इट इज लाइक वन नेशन वन एग्जाम, जैसे आजकल आप Right. चल रहे हो ना वन नेशन वन इलेक्शन, हाँ हाँ, सो इट इज लाइक वन नेशन वन एग्जाम। सो Okay. दिस एग्जाम का एजेंडा यही है कि आप मल्टीपल एग्जाम्स ना के लिए। देने पड़े बच्चे को, राइट, और सबसे इम्पोर्टेंट है दिस एग्जाम गिव्स इक्वल फुटिंग टू एवरीबॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इंडिया में मैम इट्स नॉट लाइक कि दिल्ली इज इंडिया, इंडिया इंक्लूड्स कश्मीर टू Right, कन्याकुमारी right. बंदर टू चिल्ड्रन, एग्जैक्टली, एंड वी हैव मल्टीपल बोर्ड्स लाइक CBSE ICSE स्टेट बोर्ड्स। हाँ राइट, तो अब सेंटर यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है, एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आपका टेस्ट का सिलेबस फिक्स है, पैटर्न फिक्स है, राइट, आप उसमें अच्छा करो और आप एडमिशन। ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छा एक बोर्ड ज़्यादा मार्क्स दे रहा था, एक बोर्ड कम मार्क्स दे कम रहा था, marks दे वहाँ रहा। एवरेज मार्क्स की कम आ रहे थे, मैं अनफॉर्चुनेट था, मैं इस बोर्ड में पढ़ रहा था, मैं हाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाया। या, सो दिस इज द बेस्ट पार्ट। अच्छा, सो यू कंसिडर दैट इंट्रोड्यूसिंग द CUET इज अ गुड डिसीजन? या इट इज़ अ गुड डिसीजन अच्छा। बिकॉज फर्स्टली एज अ स्टूडेंट के हिसाब से आप देखो मैम, हर एक स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है। आई कैन गिव यू माई एग्जाम्पल, आई एम अ PCM स्टूडेंट, ओके, मुझे मैथ्स अच्छी लगती थी लेकिन केमिस्ट्री नहीं मैं अच्छा कर पाता था। CUET आपको वेज देता है, इफ़ यू आर गुड इन वन, ओके, आप अपने अपने हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस ले सकते हाँ, हैं। ये बेस्ट पार्ट है CUET का, इट गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू ईच सब्जेक्ट। ईच सब्जेक्ट, फिजिकल एजुकेशन भी अब डोमेन का पार्ट है, ओके, हाँ, फाइन आर्ट्स भी डोमेन का पार्ट है, देयर आर 23 डोमेन आई सब्जेक्ट। थिंक दिस हैज बीन चेंज्ड अभी लास्ट 1 or 2 years, या है ना? हाँ, तो मैम ये एक बच्चे की, अगर बच्चे को किसी को लगता है मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में अच्छा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है वो हैवी सब्जेक्ट ही पढ़े, पढ़े, वो अपने वाले पढ़े, हाँ, जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें वो- इंटरेस्ट है उसे वो पिक कर सकता है द डोमेन Right. सब्जेक्ट। सो स्टूडेंट के लिए अच्छा है, प्लस यूनिवर्सिटीज़ के लिए अच्छा है, क्योंकि हमारा जो स्कूल एजुकेशन है इट इज़ मोर ऑफ नॉलेज बेस। वहाँ हर एक बच्चा 90% ला सकता है। लेट्स से इफ देयर इज अ क्लास, देयर आर 50 स्टूडेंट्स, राइट, 50 के 50 बच्चे 90% ला सकते हैं। अच्छा, पर CUET में ऐसा नहीं है। CUET नहीं, CUET में क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, या स्पेसिफिकली इफ विल टॉक अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो Yeah. कितना नियर अबाउट क्या परसेंटेज रहता है, नंबर ऑफ मैम सीट्स, कॉलेजेस, क्या रेशियो रहता है? मैम अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का बात करूँ तो लास्ट ईयर का इफ आई गिव यू द एग्जांपल फ्रॉम SRC, हाँ जी, तो SRCC में जाने के लिए बच्चे को 800 में से अराउंड 780 प्लस लेके आना है। अच्छा, तो अब ऐसा नहीं है कि वो लाइक एक हार्ड वर्किंग है जिस वही बच्चा लेके आ सकता है, इसकी कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छी हाँ, है ना, जिसने थॉरो पढ़ाई करी है कर 2 रखा साल, है, जो सब्जेक्ट से अपडेटेड है, वही बच्चा लेके आएगा। ये नहीं होगा अनलाइक जैसे पहले होता था कि किसी बोर्ड ने उसे ज़्यादा मार्क्स दिए, मार्क्स दे दी, तो एक क्वालिटी बच्चा ये ऊपर आ रहा है, राइट, एंड दैट इज़ अ गुड। तो मैम ये एक अच्छा चीज़ है। great. Are there some popular universities which accept CUET का score? मैम दिल्ली यूनिवर्सिटी, हाँ जी, DU तो है, other than DU this? है, BHU है, अच्छा, मैम
JNU जो यूनिवर्सिटी है वो मेजरली PG कोर्सेज कराता है, पर उसके जो UG प्रोग्राम्स हैं वो CUT के थ्रू है। ओके। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इवन दिल्ली में जो IP यूनिवर्सिटी है वो भी अपना एक एंट्रेंस कराता है, बट जो सेकंड प्रेफरेंस है वो CUT को देता है। CET के देते हैं, राइट। सो 45 यूनिवर्सिटीज तो ऐसी हैं अक्रॉस इंडिया जिनके लिए मैंडेटरी है CUT, CET का स्कोर। लाइक ओस्मानिया यूनिवर्सिटी है हैदराबाद हाँ में। हाँ, बट उसके अलावा लाइक BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो राइट। है ना, वो सब CUT अच्छा, they स्कोर consider को इस score कंसीडर को। करते हैं। ओके। अब इंडिया का मैम एक तरीके से बाय डिफॉल्ट एग्जाम है क्लास 12 के स्टूडेंट के। ट्रू। अगर वो क्लास 12 कर रहा है, इरिस्पेक्टिव चाहे उसे जेई में ही जाना है, Right. मतलब जेई करना है या हाँ, मेडिकल हाँ। करना है या लेट से कोई और एंट्रेंस देना है, बट CUT वो देगा। क्योंकि अगर आपको डिसेंट जगह से ग्रेजुएशन करना है या इंडिया में, देन यू हैव टू अपेयर फॉर अपीयर फॉर CUT। दिस इज लाइक अ बाय डिफॉल्ट एग्जाम। बट स्टिल देयर आर फ्यू यूनिवर्सिटी जहाँ पे CUT कंसिडर नहीं करते हैं, ऐसा भी है कुछ? हाँ मैम, देयर आर यूनिवर्सिटी, देयर आर एक्सेप्शंस। प्राइवेट जो हाँ, colleges प्राइवेट हो गए। यूनिवर्सिटी, बट जहाँ पर भी ऐसा है, दे कंडक्ट देयर ओन एंट्रेंस। हाँ, एंट्रेंस तो अब है, जस्ट लाइक IP यूनिवर्सिटी, Yeah, उनका they- अपना yeah, सेपरेट they- हो गया। एंड दे कंडक्ट देयर ओन एंट्रेंस, या बाकी जैसे जेई हो गया, हाँ हाँ, IPM प्रोग्राम होते हैं एम्स जी। के लिए, राइट। BB एंट्रेंसेस होते हैं, सिम्बाइसिस क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हैं, वो अपने एंट्रेंसेस कंडक्ट कराते हैं। राइट। तो आप देखोगे मैम, ऑलमोस्ट 90-95% आफ्टर 12th a student has to write some entrance. Some entrance, right. That's so nice. Thank you so much for giving this clarification. Sir, can you please elaborate what is the CUET exam pattern? Okay, मैम, like CUET एग्जाम पैटर्न इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। Okay. इसमें मैम मेजरली 3 पार्ट हैं। वन इज द लैंग्वेज पार्ट, Okay. सेकंड इज द डोमेन पार्ट, एंड थर्ड इज जनरल टेस्ट पार्ट। Okay. अगर बेसिक सब्जेक्ट्स की बात करूं, देयर आर टोटल 37 सब्जेक्ट, जिसमें 13 तो लैंग्वेज हो गए, हाँ जी। 23 डोमेन हो गए, और एक आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो। अच्छा। एग्जाम का मोड मैम MCQ मोड है। Okay. It is MCQ mode exam where a student will fetch +5 for correct, Oh. -1 अच्छा। as a negative, and there will be 50 questions. ये इसी साल चेंज हुआ है। लास्ट ईयर तक there used to be choices in the exam pattern. Like ऐसे होता था that there are 50 questions, out of 50 a child has to attempt 40. Okay. पर अब क्या है, यूनिफॉर्मिटी है, हर एक सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन आएंगे, Okay. एंड टाइम लिमिट सेम है 60 minutes. And ये negative marking previously भी थी? हाँ, or they नेगेटिव haven't- मार्किंग मैम प्रीवियसली भी थी, लेकिन प्रीवियसली आपके पास ऑप्शंस होते थे, लाइक 10 क्वेश्चंस आप चॉइस कर सकते हैं, पर अब चॉइस नहीं है, Okay. यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। Okay. तो ये चेंज हुआ है, और एक स्टूडेंट मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स ले सकता है। लाइक सपोज कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है फॉर हाँ जी। एग्जाम्पल, तो एक उसे मैंडेटरी लैंग्वेज लेना है, हाँ, ठीक है। लाइक से उसने इंग्लिश एक English लैंग्वेज choose ऑप्ट किया, right. अब उसे डोमेन सब्जेक्ट ऑप्ट करने हैं, तो मिनिमम उसे 3 डोमेन सेलेक्ट करने हैं, जो 23 डोमेन्स है, अच्छा। लाइक मैथ्स ले लिया, इको ले लिया, हाँ, हाँ। अकाउंट्स BST एक ले लिया, Okay. एंड देन जनरल टेस्ट वो ले सकता है। अब जनरल टेस्ट एक यूनिक फीचर है CUET। Okay. वाई इट इज अ यूनिक फीचर? बिकॉज मैम इंडिया में, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले जो प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के लिए आप जाते थे, जी। लाइक BMS, PB, BFI, तो उसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी एक एंट्रेंस कराता था जिसका नाम था DU JAT। Okay. पर CUET के बाद वो एंट्रेंस नहीं होता, Okay. लेकिन आपको अब वो प्रोग्राम करने हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर हाँ, एग्जाम्पल, तो आपको जनरल टेस्ट देना होगा, Appear करना। एंड दिस जनरल टेस्ट इज अ बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका क्लास 12 के जो हम पढ़ते हैं डोमेन, उससे जी। कोई रिलेशन नहीं है। इट इज बेसिक एप्टीट्यूड जो हमने क्लास 10 तक पढ़ा। Study किया है, right. तो ये एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज जो बच्चा प्रोफेशनल कोर्स, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स उसके लिए जा रहा है, उसके लिए तो ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर एडमिशन प्रोसेस। Right. लेकिन हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आपने मैम देखा होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दैट दे डू सम प्रिपरेशन ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स। Right. इवन कैट इज ऑल्सो एप्टीट्यूड एग्जाम। तो सब बच्चे क्या करते हैं जनरली, आप पहले ग्रेजुएशन करते हैं, फिर वो एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करते हैं, Right. लेकिन जनरल टेस्ट आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप 12th में अपना एप्टीट्यूड अच्छा करें, Improve कर लीजिए साथ देन यू कैन गो टू एनी फील्ड। साथ। Right. लाइक आपको एकेडमिक्स के बाद नेट से किसी को जनरल कॉम्पिटिटिव फील्ड में भी जाना है, तो आपने एप्टीट्यूड तो पढ़ लिया, पढ़ लिया। अब आप उसमें और अच्छा इंप्रूव करके थोड़ा और उसमें डेप्थ
हाँ, गेन study करके करके। आप फर्दर, तो ये एक उसका अच्छा एड ऑन फीचर है। अच्छा। एंड सेकेंड जो मैम चेंज है CUET का, जो लोगों को समझना चाहिए, विच इज़ नॉट एज एज आर क्लास 12, जी। दैट CUET में चॉइसेस नहीं है, लेकिन बोर्ड ऑल्सो देयर आर चॉइसेस। हाँ हाँ बोर्ड का पैटर्न है कि वहाँ पर 5 मार्क्स में हमेशा चॉइस है। हाँ, राइट। देयर आर सम चॉइसेस इन बोर्ड एग्जामिनेशन, बट Okay. CUET अब चॉइस नहीं दे रहा। अच्छा, वो भी इन्होंने यस, डिलीट कर एंड दिया। मैम सिलेबस इज डिफरेंट। बट सर वो तो 12th में से आता है। मैम 12th में से आता है, 12th का जो करिकुलम है बट बच्चों 12th का करिकुलम है वो आता है, पर मैम वो सारे सब्जेक्ट का यूनिफॉर्म नहीं है। एग्जाम्पल, दिस ईयर इन इकोनॉमिक्स जी। 12th का बच्चा पढ़ता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। पर वो अब CUET में नहीं है, उसकी 11th वाला पार्ट है CUET। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों को और कंफ्यूज नहीं कर रहे, डोंट यू मैम थिंक? इट इज़ नॉट लाइक दैट। आई एग्री विद दिस पॉइंट कि बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। कितना स्टडी करें? बिकॉज सॉरी, आई एम जस्ट कटिंग यू इन बिटवीन, क्योंकि बच्चा पहले तो 12th के एग्ज़ाम से ही एक बर्डन सम लेके आया कि मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम है, थोड़ा करियर आगे बनाना है मुझे इसके बेसिस पे ही, तो ये भी स्टडी करना है। देन CUET के लिए अलग से पढ़ाई करनी है। देन आई हैव ऑल्सो हर्ड दिस थिंग कि जो पोर्शन डिलीटेड होता है दैट टू इज़ अ पार्ट ऑफ CUET का एग्ज़ाम, एग्जैक्टली करेक्ट? दैट इज सो अब 11th में से भी कुछ आना है, तो वो थोड़ा सा मैम दे हैव टू बी वेरी कॉन्शियस मैम अबाउट। इसमें ना आप इसमें ना दो पर्सपेक्टिव हैं। जी। अगर मैं इस तरह से देखूं कि ओके व्हाई दिस पैटर्न, हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, हाँ ठीक है, वो ये absolutely पैटर्न ठीक है, correct। लेकिन अब हम आते हैं स्टूडेंट। हाँ, मैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। ऑब्वियसली मैम स्टूडेंट को डिफिकल्टी होती है। जी। डिफिकल्टी कैसे होती है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। CUET सेज कि वी विल गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू ईच सब्जेक्ट। ओके। अब क्या होता है, जनरली मैम PCM का एग्जांपल मैं बताता हूँ। PCM के बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ते या लैंग्वेज नहीं पढ़ते, हाँ ठीक है। उनका ये रहता है अच्छा बोर्ड की मार्कशीट देखी या डेट शीट देखी, सॉरी, अब उन्होंने देखा कि यार 3 दिन की छुट्टी होगी तभी कर लेंगे। तभी स्टडी करेंगे। बट CUET में अब लैंग्वेज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज लैंग्वेज एक तो मैंडेटरी है, हाँ प्लस MCQ नेचर का पेपर आए, जी। वहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, तो लैंग्वेज की वजह से बहुत बच्चे अच्छा नहीं कर पाते। आई विल शो यू द एग्जांपल्स कि इकोनॉमिक्स 200 आउट ऑफ 200, BST 200 आउट ऑफ 200, इंग्लिश में 65 रहे। इट्स नॉट बिकॉज बच्चा कॉम्पिटेंट नहीं था, इट्स जस्ट Right. बिकॉज नहीं कोई पढ़ा। ध्यान नहीं दिया, राइट। एक ये सेकंड मैम जो मुझे लगता है इम्प्लीमेंटेशन में इशू है, जैसे कि अब इसी साल हुआ है इन जी। 25 नोटिफिकेशन, 2 मार्च को बच्चे को ये पता चल रहा है जब नोटिफिकेशन आया है कि सिलेबस चेंज हो गया। ओह, इफ दे वांट टू चेंज द सिलेबस, एटलीस्ट दे शुड सेट इट प्रायर कि यार द अथॉरिटीज शुड अथॉरिटी शुड टेक केयर ऑफ दिस care of पार्ट। this part. ये इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में मैम थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं ओके। स्कूल लेवल से उसे चेंज करें। एटलीस्ट बच्चे को सिलेबस आप पहले बता दो। एटलीस्ट 3-4 months का तो गैप 3-4 होना months. चाहिए, मे बी बाय द एंड ऑफ दिसंबर। या ये जो बिल्कुल लास्ट notice आना में चाहिए। लास्ट में चेंज हुआ है। इवन नॉट इन लाइक इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री में भी कुछ यूनिट्स डिलीट हुई हैं इस बार, जो लास्ट ईयर के CUET के सिलेबस में थी। सो अर्लियर देयर वर 19 यूनिट्स, अब 17 यूनिट्स हो गई हैं। अच्छा। हिस्ट्री में देयर वर 15 यूनिट्स, अब 12 यूनिट्स हो गई हैं। तो मुझे लगता है अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज मैम पास्ट 3 ईयर्स से आप देखोगे CUET चेंज हो रहा है। हाँ फर्स्ट ईयर जब हुआ था, जब 75 क्वेश्चंस होते थे जनरल टेस्ट में, फिर नेक्स्ट ईयर आया तब थोड़ा चेंज किया। अभी बोला लास्ट ईयर जब 2024 वाला CUET हुआ तब ये हाइब्रिड मोड पे हुआ था, अच्छा। पेन पेपर मोड हाँ, पे भी pen हुआ paper था और mode। CBT मोड, कंप्यूटर बेस्ड Right, टेस्ट भी हुआ था। right। इस बार अब वापस से पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ है। Okay। तो कहीं ना कहीं CUET भी अभी अपने आप फिक्स नहीं कर पा रहा है दैट NTA जो बॉडी है, Right, नेशनल right, टेस्टिंग national। एजेंसी की, किस तरह से हमें ऑर्गेनाइज कराना है। बट यस, सिलेबस पार्ट में मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि पहले स्टूडेंट को प्रायरली इन्फॉर्म हो जाए। CUET कुछ हमारा करिकुलम इस तरह का हो स्कूलिंग का कि उसमें CUET के बारे में कुछ पहले से ही क्लास Knowledge। 9-10th लेवल पर ही बता दिया जाए, करेक्ट। क्योंकि 9th पर भी बताना मैम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th में बच्चा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेता है। राइट। तो अगर मुझे पहले ही ये बताओ कि यार मुझे 12th में CUET देना है, हाँ, सो मैं अपने कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग बना लूँ। एंड साथ ही साथ जैसे लैंग्वेज पे फोकस करना भी, बच्चा एट दैट पॉइंट इन टाइम एग्जैक्टली, दे शुड So, टेक केयर ऑफ दिस वो थिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। Right। लाइक इसमें और मैम दूसरा जो एक मुझे प्रॉब्लम लगता है, लाइक देयर मैनी यूनिवर्सिटी जो बोलती हैं
वी डजंट केयर व्हाट आर द सब्जेक्ट्स यू हैव इन क्लास 12, हाँ जो आप डोमेन फिल करोगे, अगर आप हमारे कोर्स में एलिजिबल हो, विल गिव यू एडमिशन. अच्छा But at the same time, Delhi University says you have to only opt for the subject which you are having in your class 12. राइट आपने जो जो आपके पास study क्लास किया। 12 में है. तो अब इसमें भी डाइकोटमी भाई क्या फॉलो करे. क्या? तो ये कंफ्यूजन है, नो डाउट. पेरेंट्स माय क्वेश्चन वाज जस्ट दिस ओनली कि यहाँ बच्चों को टेंशन में देख के पेरेंट्स को थोड़ा सा ज़रूर रहता है कि अरे बच्चों का क्या होगा, मतलब कितना वो- फोकस होके बच्चे पहले ही दिन रात लगा रहे हैं पढ़ने के लिए। वही एज अ स्टूडेंट पर से ही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका मैम जो इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ा चेंज होना चाहिए. बिकॉज अब आप छोटा सा एग्जाम्पल है, आप इसी बार का देखो, जी स्कूल के बोर्ड्स चल रहे हैं, बीच में आपने सीयूटी फॉर्म दे दिया, बच्चा अपना एग्जाम दे, वो फॉर्म Correct. फिल करे. राइट राइट. अगर आपको फॉर्म फिल कराना है, आप जनवरी में करा हाँ. मतलब ये तो एक यूनिवर्सल, सबको पता है इंडिया में इन द मंथ ऑफ मार्च हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन होते फेब हैं. मार्च राइट तो कहीं ना कहीं हम ये वाला तो मतलब प्रेशर कट डाउन कर रिलीज सकते कर सकते हैं बच्चों को इस बच्चों. चीज़ से। करेक्ट, तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है एंट्री को सोचनी चाहिए सोचनी चाहिए बिल्कुल। कि आप एग्जाम डेट्स ठीक रखो. अब एग्जाम डेट्स का मैं बताता हूँ मैम, इंडिया में आईपीएम का भी अच्छा खासा कॉमर्स का हाँ, स्टूडेंट प्रिपरेशन right. करता है, और आईपीएम भी वो अपॉर्चुनिटी देता है दैट आफ्टर 12th कॉमर्स स्टूडेंट कैन डायरेक्टली परस्यू फ्रॉम आईएम्स. अगर आपको कैट आपने सुना होगा, हाँ, CAT, कैट के थ्रू आप आईएम्स में जाते हो, Right. पर आईपी मैट का एग्जाम 12th के बच्चों को मौका दे रहा है. आई एम इंदौर, आई एम Right, रोहतक, right. वहाँ पढ़ने का मौका मिले. लेकिन आपको सरप्राइज होगा जान के, आईपीएम की डेट है 12th में इस साल, सीयूटी स्टार्ट हो रहा है 8th में से, जिसमें अभी सीयूटी की डेट शीट नहीं आई. हाँ वो कहीं ना कहीं जाके आप मतलब Clash होगा. परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर है कि एग्जाम क्लैश ना हो. और सबसे बड़ी चांसेस बात आर है वेरी हाई सर। क्या, और मैम प्रिपरेशन पार्ट पे हाँ। आप देखो ना, बच्चे का प्रिपरेशन पार्ट पे वो अपना सीयूटी के लिए मिनिमम 5 सब्जेक्ट उसे प्रिपेयर करने हैं, फिर उसे आईपीएम एग्जाम भी देना है. राइट उसके बीच में जैसे दिल्ली का अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो दिल्ली के बच्चे आईपी यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी देते हैं. हाँ, हाँ. वो भी कहीं ना कहीं आपका लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में है. तो मतलब ये मुझे लगता है कि जो बॉडीज हैं वो एटलीस्ट इसे तो देख कम्युनिकेट करके सो दैट अलाइन Yeah. ऐसा होना चाहिए मे बी आई टोटली देयर शुड बी यू नो टाइमलाइन फॉर द एग्जामिनेशंस। मैम देयर इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग. हाँ. हर एक यूनिवर्सिटी नहीं कर पाएगी जी. बिकॉज मल्टीपल यूनिवर्सिटी जी. है, पर एटलीस्ट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हाँ सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो तो इतना कर सकती है कि हम स्टूडेंट पे अननेसेसरी प्रेशर ना Pressure ना क्रिएट करें. Right. क्योंकि आप देखो 2 अप्रैल को बोर्ड्स खत्म हो रहे हैं, हाँ बच्चे के पास टाइम नहीं है. नहीं सीयूटी के लिए प्रिपरेशन ज्वाइन कर लेंगे बच्चे अभी हाँ, एंड देन मई में एग्जाम जस्ट अ मंथ जस्ट मैम राउंड Hardly. पूरा आपका हार्डली 21-25 days 25 मैक्स days. ऑफ है ना। सो दिस इज अ थिंग. ऑल्दो एग्जाम का जो इंटेंट है, एग्जाम का जो नेचर है वो अच्छा है, अच्छा है हाँ करेक्ट। बट इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इज नॉट नो नो वी रियली अप्रिशिएट कि एनटीए ने ऐसा ऑर्गेनाइज किया है जो पैटर्न है, बट ठीक है थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में दे शुड इम्प्लीमेंटेशन थिंक अबाउट स्टूडेंट पर से, बिकॉज हाँ, वी हैव आस्क्ड from- अबाउट स्टूडेंट को मैम हाँ, ट्रॉमा है. स्टूडेंट अभी जो 12th का बच्चा होता है, जब हम मैं भी 12th में था, जी पहले तो प्री बोर्ड होते हैं, Pre-board, है ना. आप प्री बोर्ड, फिर आप बोर्ड्स में प्रिपेयर करते हो, फिर आपको कंपटीशन भी देखना है, जी और फिर कंपटीशन में भी बीच में फॉर्म फिलिंग भी है आपका. हाँ फॉर्म फिलिंग कर लो, फॉर्म मिस होना नहीं चाहिए. करेक्ट तो इसमें थोड़ा सा मतलब या एक टाइमलाइन ठीक हो जी और एक अवेयरनेस ठीक हो, होना क्योंकि चाहिए. अभी आपको मैम सरप्राइज होगा जान के, लास्ट ईयर बहुत बच्चे सिर्फ एग्जाम इसलिए नहीं दे पाए बिकॉज उनका फॉर्म गलत. so there is no support from say school या ऐसा कुछ यूनिवर्सिटी से बैक एंड पे कि बच्चों को फॉर्म फिल में हेल्प किया मैम, जाए मैंने- जनरल लाइक इजी टू गो आई। मैं अब इसमें भी ना मैम, नॉट एवरी स्कूल इज कॉम्पिटेंट. हाँ दिस अ वेरी बिग स्टेटमेंट, बट सी अभी मैम मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ. सीयूटी बोलता है आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स में, हर एक स्कूल में, दिल्ली की मैं बात करूँ, मल्टीपल सब्जेक्ट्स ऑप्शन नहीं, बच्चे को स्कूल चेंज करना. हाँ बिल्कुल तो स्कूल आप बोल रहे हो सब सारे सब्जेक्ट लेने हैं, वहीं स्कूल प्रोवाइड नहीं कर पा रहा. चॉइस ऑफ सब्जेक्ट के लिए Exactly. नहीं है, अब बहुत पेरेंट्स कर पाते हैं वो डिसीजन कि ठीक है हम चेंज कर रहे हैं, बहुत पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं एंड इन दैट वे वो बच्चे को वो
वो जो है subject वो पढ़ना पड़ता है एग्जैक्टली मैम। इरिस्पेक्टिव उसका इंटरेस्ट है नहीं है बट मैं कई बार स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आपने लेट्स से सोशियोलॉजी क्यों ली, साइकोलॉजी क्यों ली, राइट तो आंसर आता है कि सर वही है हमारे स्कूल में। हाँ कई सीयूटी से एनटीए अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ह्यूमैनिटीज भी ले सकते, ह्यूमैनिटीज का बच्चा मैथ्स भी ले सकता है, हाँ बट स्टिल देयर मेनी स्कूल्स वो नहीं प्रोवाइड नहीं प्रोवाइड करते तो कहीं ना कहीं मैम पॉलिसी इज गुड, Right. पॉलिसी बोलती है आप अपने मर्जी के सब्जेक्ट लो, लो। बट इम्प्लीमेंटेशन स्कूल लेवल पर नहीं। इस चीज के लिए स्कूल लेवल और ये बात तो मैं दिल्ली के स्कूल से कर रहा हूँ। हाँ। व्हाट अबाउट अदर टियर 2 एंड state टियर 3 के, सिटीज? यू विल सरप्राइज टू नो इन टियर 2 टियर 3 सिटीज लोगों को सीयूटी नहीं पता है वहाँ, क्योंकि अवेयरनेस जैसे आपने बोला स्कूल, वो काम स्कूल का होना चाहिए था, जी लेकिन वो अभी नहीं पहुंची है बेसिक इन्फॉर्मेशन कि अच्छा ये एग्जाम भी आ गया है। तो सो कहीं ना कहीं इसमें मैनेजमेंट का बहुत मेजर रोल प्ले करता है, डोंट यू थिंक? मतलब मैनेजमेंट से ज़्यादा मुझे लगता है जो हमारे बोर्ड्स हैं उन्हें ये देखना चाहिए, जो भी रिस्पेक्टिव बोर्ड, हाँ जो भी शेयर होल्डर्स हो, हाँ जो भी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें एटलीस्ट अपने स्कूल लेवल पर इतनी अवेयरनेस, अगर कोई लेट्स से बिहार या उत्तर प्रदेश की किसी रिमोट सिटी का कोई अगर बच्चा है, मैं कहता हूँ वो नहीं आ रहा दिल्ली पढ़ने, पर उसे ये प्रोसेस को पता होना चाहिए ना कि यार सीयूटी भी कोई एग्जाम है, एग्जाम है, राइट, क्योंकि दिल्ली में क्योंकि अर्बन सिटी है, पेरेंट्स अवेयर हैं, पेरेंट्स पुश करते हैं स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पर फिर भी अवेयरनेस है। करेक्ट, बट सीयूटी एज एग्जाम में अब भी टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में अवेयरनेस नहीं है। आप सोचो वहाँ पे आधे लोगों को भी ये भी नहीं पता होगा कि जो 2 मार्च वाला नोटिफिकेशन है उसमें इकोनॉमिक्स का सिलेबस ये चेंज हुआ है, तो प्रिपरेशन क्या करें? So Correct. ये एक इशू है। absolutely, but this has to be taken care, इस पे हाँ जरूर मेनली मैम डाउन द लाइन लाइक हाँ। अभी जैसे इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, मे बी 1-2 साल में और कंप्लीट हो जाए Correct. एग्जाम, तो मेरा तो बस यही है कि मैम एक तो डेट्स हाँ ऐसा हो कि स्टूडेंट को मौका मिल पाए पढ़ाई का, स्टडी का, उसे प्रॉपर मौका मिल पाए, और एक अवेयरनेस हाँ हो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस। टाइमली सब चीज होना चाहिए क्लास 10th में जब 11th में बच्चा आ रहा है, जी, उसके माइंड में तभी क्लियर हो कि मुझे आगे ये पर्टिकुलर कोर्स करना है, तो मैं अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उस तरह से ले सकता करेक्ट, नो हूं, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। Yeah, very well said, sir. Is there any difference between CUET का pattern and IP MAT का pattern? यस मैम, देयर इज अ डिफरेंस। Okay. सीयूटी में हम डोमेन सब्जेक्ट एक मेजर रोल प्ले करते हैं, जी, लेकिन जब हम आईपीएम के एग्ज़ाम पैटर्न पे आते हैं तो वो मेजरली फोकस करता है आपका बेसिक क्यूए पार्ट पे, एलआर पार्ट पे और वर्बल एबिलिटी पार्ट पे, तो वो बेसिकली एप्टीट्यूड एग्जाम है। हाँ हाँ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो सीयूटी का जनरल टेस्ट है, अच्छा, लाइक वो उसका थोड़ा डिफिकल्ट लेवल आप आईपीएम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चा Okay. उस लेवल पर प्रिपेयर हो जाए, तो वो एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट Okay, that सीयूटी में आपको सब्जेक्ट्स भी Subject पढ़ने, भी पढ़ रहे हैं, तो okay, ये एक डिफरेंस होता है। डिफिकल्टी इज ऑब्वियसली अ डिफरेंस। ठीक है, आईपीएम का एग्ज़ाम थोड़ा डिफिकल्ट लेवल हाँ पर जी। जाता है। इनफैक्ट जो आईपीएम इंदौर का जो एग्ज़ाम होता है जी। वहाँ पर बेसिक क्यूए के शॉर्ट आंसर्स भी आते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी आते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये भी एक चैलेंज होता है स्टूडेंट के लिए। प्लस वहाँ पर फिर पीआई राउंड भी है, पर्सनल इंटरव्यू राउंड, पर्सनल इंटरव्यू, बट आप देखोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पर्सनल इंटरव्यू नहीं है। सो ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है इन द पैटर्न पार्ट फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। okay, great. And what advice you give to the students who are preparing for CUET? क्या say top 3 pointers एकदम से just rightly you have in mind? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ऑब्वियसली एनसीईआरटी, हाँ, इररिस्पेक्टिव कि आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, रिफ्रेशर्स जैसे लोग रेफर करते हैं, फाइन यू कैन डू दैट, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनसीईआरटी। नंबर 1 इज दैट। मतलब सीयूटी ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए टफ हो चुका है, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना कुछ होता है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ईयर्स हैं, तो एनसीईआरटी आपको नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करनी है। नंबर 1 इज दैट। सेकेंड थिंग इज सीयूटी का जो पैटर्न है, इट इज़ नॉट लाइक आर सीबीएसई बोर्ड, इट्स नॉट अ कम्प्लीटली डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। एक बच्चे को जितना वो प्रैक्टिस कर सकता है टॉपिक्स का, वो उसे हेल्प करेगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस हुआ, वो ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि एग्जाम नेचर ही है। right, एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट इज फॉर सीयूटी, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनी सब्जेक्ट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिर्फ मैथ्स पर ही फोकस कर रहे हो,
आप इकोनॉमिक्स पर ही फोकस कर रहे हो, Correct. प्लीज फोकस ऑन इंग्लिश ऑल्सो। राइट, इंग्लिश की भी उतनी वेटेज है, अल्टीमेटली आपका रॉ स्कोर ज़्यादा आना चाहिए। हाँ, करेक्ट करेक्ट, तो रॉ स्कोर आपका तभी अच्छा आएगा जब आप सारे सेक्शंस में अच्छा करोगे। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को इजीली नहीं कर सकते हो, तो इट गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू ईच सब्जेक्ट। तो ये 3 चीज़ अगर बच्चा करता है हाँ हाँ, तो मुझे लगता है कि एक डी बच्चे से अच्छे से आप लोग क्रैक कर सकते हैं बच्चे CUET अच्छे एग्जाम। से कर सकते राइट, सो क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे यूजुअली करते हैं इसकी प्रिपरेशन में? हैं। मैम कॉमन मिस्टेक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो अवेयरनेस ही है। बच्चे ना अभी एक एटीट्यूड में होते हैं, ठीक है पहले बोर्ड्स कर लेते हैं फिर हम प्रिपरेशन करेंगे, तो ये एटीट्यूड ही गलत है। क्योंकि जैसा मैंने बोला अभी इनिशियली हमने डिस्कस किया कि टाइम ही नहीं है आपके टाइम पास नहीं, कि आप 30 डेज 35 डेज में कितना ही प्रिपेयर कर लोगे। तो एक तो वो क्लियरिटी होनी चाहिए माइंड में कि मुझे जब मैं 11th में हूँ तभी से मेरे माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मैं 12th के बाद इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को टारगेट करूँगा Correct. या इस पर्टिकुलर कोर्स को टारगेट जी। करूँगा। लेट्स से अगर मैंने सोचा है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी BMS करना चाहता हूँ, राइट, तो मुझे तभी पता होना चाहिए कि उसके लिए मुझे मैथ्स लेनी पड़ेगी, मुझे उसके लिए जनरल टेस्ट अपना अच्छा करना पड़ेगा, मुझे लैंग्वेज अच्छा करना पड़ेगा। अगर मेरे माइंड में वो थॉट है, वो सिंगल माइंडेड एटीट्यूड है मेरा 11th से ही, तो ये एग्ज़ाम बहुत ईजी बहुत ईजी है। तो इवेंचुअली आपके सिलेबस Exactly. इट्स नॉट, लेकिन हमारी ये हैबिट हो गई है अब स्कूलिंग में कि हम 11th करने के बाद 11th भूल जाते हैं 12th में आते हैं फर्स्ट ईयर वो कवर, तो जो बच्चा वो नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पे इशू। अदरवाइज आपका अगर बिल्कुल क्लियर आपका फोकस है, आप जी। 11th में ही अगर बिल्कुल क्लियर हो, लेट्स से मुझे SRCC जाना है, मुझे ऑनर्स करना है, राइट, मुझे जो मेरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है मैंने इनिशियली उसकी लेवल से करना स्टार्ट कर दिया है COT लेवल से, तो एग्जाम बहुत ईजी है। इट्स जस्ट लाइक दैट। ओके, सो अवेयरनेस इज द थिंग दैट Awareness is the thing, yes. यू नो टेक केयर ऑफ। और वो इनिशियल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग मैम लेटर पार्ट पे देखते हैं। जी, अगर हम 11th से ही ये क्लियर हैं कि हम सब्जेक्ट्स क्यों ले रहे हैं, हाँ, अगर लेट्स से मैं पॉलिटिकल साइंस ले रहा हूँ, मेरे माइंड में क्लियर होना चाहिए होना चाहिए। कि वाई आई एम टेकिंग दिस सब्जेक्ट, या ये सब्जेक्ट कौन कौन से कोर्सेज में मेरे पास हेल्प करेगा, या अगर मुझे ये कोर्स करना है। हमारे साथ इशू क्या होता है, हम पहले सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, हम 2 साल पढ़ लेते हैं, फिर हम सोचते हैं वापस कोर्स में अब जाएंगे हमने क्या करना है, और तब बहुत लेट हो जाता हो जाता है। करेक्ट सर। है। सो ये मैम एक इशू है। और जैसे ये एग्ज़ाम करता है मैम, हर एक सब्जेक्ट की अब इक्वल रिस्पेक्ट। और सर ये मेजर इशू है, कहीं मतलब छोटा सा इशू नहीं हम इसको समझ सकते हैं। आई मीन ये बहुत मास लेवल पे इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। पेरेंट्स को भी इस चीज़ का इनिशियली बच्चों को थोड़ा मे बी काउंसलिंग माइट हेल्प इन दिस। हाँ, व्हाट डू यू से? एटलीस्ट मैम पेरेंट्स को काउंसलिंग से ज़्यादा अपने मतलब बच्चे से ओपनली बात करनी है। हाँ, नहीं काउंसलिंग माई कंसर्न इज लाइक जो इंस्टीट्यूट, जैसे मैं IMS की बात करूँ, आपका इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग देता है, सो डोंट यू थिंक कि पेरेंट्स को 11th में आके आप लोगों के साथ आके इस चीज़ को लेके थोड़ा क्या पैटर्न है, सब चीज़ समझना चाहिए। हाँ मैम, व्हाट डू यू से? ये करना चाहिए। है ना, दिस काउंसलिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। पेरेंट्स को एज एन इंस्टीट्यूट, आप लाइक इंस्टीट्यूट में लोग मतलब पेरेंट्स का एक एटीट्यूड होता है कि नहीं एडमिशन के लिए बोल रहे हैं, नहीं, करेक्ट, हाँ, दैट इज अ सेकंड थिंग। हाँ। आप फर्स्ट आके जस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस, क्योंकि मैम इतने कोर्सेज आ रहे हैं ना अब। हाँ जी, जैसे 90% स्टूडेंट्स जो CUT दे रहे हैं उन्हें जनरल टेस्ट का इंपॉर्टेंस ही नहीं पता। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो CUT का है उसका इंपॉर्टेंस ही नहीं पता। राइट, बच्चों को ये नहीं पता कि अच्छा जनरल टेस्ट किस पर्टिकुलर कोर्स के लिए मैंडेटरी है, हाँ, वो बस पढ़ रहे हैं। दे डजंट, अभी लीगल स्टडीज़ पहले डोमेन सब्जेक्ट होता था, इस बार वो हट गया है। ओके, तो पहले अगर आपको BHU से फॉर एग्जांपल लॉ करनी Law होती थी करना तो आपको लीगल स्टडीज़ लेना है, बट इस बार से रूल ये है दैट यू हैव टू जस्ट टेक जनरल टेस्ट, लीगल स्टडीज़ है ही नहीं। एंड So देन my- आप LLB कर सकते हो उसके हाँ, बाद। सो माई पॉइंट इज कि अगर आप ये वाली अवेयरनेस तो लो। हाँ, IPM में इस साल IIM इंदौर जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है उसमें IIM अमृतसर भी ऐड हो गया, अच्छा, वो इसी साल ऐड हुआ, ओके, बट स्टिल मेनी पीपल आर नॉट अवेयर। Not सो काउंसलिंग में ये भी आपको पता चलता है कि हाँ। ओके व्हाट आर द ट्रेंडिंग कोर्सेज, कोर्सेज, ट्रेंडिंग प्रोग्राम्स, कौन सी जो यूनिवर्सिटीज कौन हैं, सी आपके बच्चे university- के अकॉर्डिंगली कौन सा सब्जेक्ट आप उनको पिक कर सकते करना हो, है, पिक करना चाहिए। क्योंकि मैम CUT इज वन ऑफ द एग्जाम, राइट, 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 स्टिल इन इंडिया देयर आर मेनी अदर मैनी एग्जाम्स। सो अभी हमें ये बस
एटलीस्ट 11th में जब हम हैं अपने सब्जेक्ट्स ले रहे हैं हम तभी ये क्लियर हो जाए हाँ कि अच्छा ठीक है ये 3-4 एग्जाम्स हैं, हम प्लान ए प्लान बी हम टारगेट रखेंगे, ये सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट जब होता है जब हम 12th में सितंबर के बाद स्टार्ट। CUET के लिए मिनिमम से 4 to 5 मंथ्स लाइक दिसंबर में यूजुअली स्कूल्स में प्री बोर्ड ओवर हो जाता है ना। सो उसके बाद से बच्चा वो 3 मंथ्स इज इनफ फॉर CUET प्रिपरेशन? नो, मैम द आंसर इज यस एंड नो बोथ। डिपेंड्स ऑन बच्चों का कितना फोकस एग्जैक्ट है ना। अगर कोई बच्चा है मैम वो अवेयर था कि मुझे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स लेने हैं, जी वो थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, तब वो लास्ट के 3-4 मंथ्स में अपना पेस अप कर सकता कर है लेगा। कि यार ठीक है उसने दिसंबर तक अपना सिलेबस बाइंड अप कर लिया है, अब वो प्रैक्टिस मोड पर आ MCQ सॉल्व कर रहा है, जो डिलीटेड पोर्शन है उसे देख रहा है, जो 11th का पार्ट है उसे रिवाइज कर रहा है। दैट इज फॉर दैट पर्टिकुलर चाइल्ड जो थोड़ा पहले से अवेयर था। लेकिन अगर जो पहले से अवेयर नहीं है, अगर कोई बच्चा ऐसा है वो दिसंबर में ये चीज़ सोच रहा है कि आप चलो CUT के कॉम्बिनेशन देते हैं, देन इट इज टू लेट। ओके ऐसा नहीं है बच्चे कर नहीं सकते, हाँ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक जो तरीका है वो करेक्ट यही होना चाहिए। मेथड, हाँ जी क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इस एग्जाम में, जी ये एग्जाम ऐसे नहीं है कि आपने पढ़ लिया, दिस इज नॉट अ ब्लूप्रिंट बेस एग्जाम। हाँ ये भी एक बात मैम बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट को समझनी चाहिए। जैसे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मैथ्स का एग्जाम्पल देता हूँ। जी मैथ्स में मैम 12th क्लास में हमें बाय डिफॉल्ट पता होता है कि यार 6 मार्क्स का क्वेश्चन हाँ एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट टॉपिक में से आओ, करेक्ट हमें पता होता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर में से आओ। जी बच्चों को ये तक पता होता है ट्रू फॉल्स कहाँ से आएंगे अपने सब्जेक्ट्स हाँ में। अपने सब्जेक्ट के लिए। तो बच्चा जब अपनी 12th की तैयारी करता है, मार्क्स के लिए जब वो प्रिपेयर जी। करता है, तो वो इस हिसाब से तैयार करता है। वो देखता है अच्छा यार 5 मार्क्स वाले चैप्टर्स जो है ना उस पर ज़्यादा फोकस करते फोकस करना हैं। एंड ट्यूशन टीचर्स भी इसी तरह से हेल्प करते हैं। जी पर CUT में आपको पता ही नहीं है कौन सा 5 मार्क्स का चैप्टर है, तो वहाँ आपको पता ही नहीं, पता चला आपने जो कम पढ़ा था वहाँ से 3 क्वेश्चन आ गए। MCQ आ गया। तो ये देयर इज नो ब्लूप्रिंट इन CUT। दिस इज समथिंग स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड, बिकॉज इन इंडिया ऑल दोज हु स्कोर मोर देन 95% वो मैम पढ़ते ही ब्लूप्रिंट पे। सब तरीका ये है कि आप ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर को ज्यादा सैंपल पेपर देख लिया जो लास्ट के एग्जैक्टली 10 सैंपल इयर्स पेपर में देख लिया, आपको टेंटेटिवली पता होता है कि यार ये 5 मार्क्स के, बट इन CUT जी। देयर इज नो ब्लूप्रिंट। तो सर अगर मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ तो क्या बच्चों को सैम्पल पेपर्स रेडिली अवेलेबल है CUT के एग्जाम के लिए? मैम एग्जैक्टली ऑफिशियली कोई सैम्पल पेपर अवेलेबल अच्छा। नहीं, बट CUT ऑफिशियल PYQ का निकला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ओके और उसके अलावा मार्केट में बहुत बुक्स हैं। राइट इनफैक्ट IMS अपना स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है ओके विच इज़ वेरी वेल अपडेटेड हाँ, but of विद द course. पैटर्न, ओके और रियल टाइम बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है। जी। सो वी हैव अ सेंट्रलाइज पोर्टल ऑल्सो, जैसे Okay. CUT इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, राइट तो उस तरह से वो प्रैक्टिस कर सकता है, पैन इंडिया रैंक देख सकता है। हाँ हाँ तो वो उस तरह से प्रिपरेशन ओके पार्ट है, बट ऑफिशियली कोई सैम्पल पेपर ओके NTA के थ्रू अवेलेबल। नहीं है। एक चीज़ इसमें और बताइए, जैसे और जो सैम्पल अदर पब्लिशर की भी बुक्स अवेलेबल हैं, क्योंकि इट्स नॉट ऑलवेज कि एवरी स्टूडेंट इज गोइंग एंड टेकिंग कोचिंग क्लासेस फॉर CUT। तो अगर उन्हें खुद से स्टडी करना है तो जो मार्केट में अवेलेबल, ठीक है वो वेबसाइट से जो आपने बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको ऑफ कोर्स सॉल्व करेंगे, पर जस्ट फॉर लिमिटेड एक्सटेंट की जो पब्लिशर्स की जो अदर बुक्स हैं, आर दीज बुक्स सफिशिएंट? यस मैम बाय एंड लार्ज आप देखोगे जितने भी पब्लिशर्स हैं जी वो कंटेंट अच्छा ही है, ऐसा नहीं है। Okay. तो जैसे और मैंने बोला कि आपको NCERT को एज अ बेस बुक देखना हाँ है, जी सो NCERT कर ली ये एज अ स्टूडेंट। उसके अलावा जितनी रिफ्रेशर्स होती हैं वहाँ पर Right. भी अब आजकल MCQ होते ही हैं, जी सर वहाँ से MCQ हो गए, देन पब्लिशर्स किसी भी पब्लिशर की बुक अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो अपना प्रिपेयर कर लेगा बच्चा। ऐसा कोई ठीक इशू है। नहीं। And how does like IMS as an institute support for this CUET preparation? मैम IMS support from stage 0, Okay. like since we cater student, जैसे जो क्लास 11th में भी आ रहा है, जी। इनिशियल 10th में भी है, तो हम तो इनिशियल से ही सपोर्ट करते हैं, चाहे जी। वो स्ट्रीम सिलेक्शन हो, Right. चाहे वो बच्चा कौन सी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में प्रिपरेशन करना चाह रहा है हाँ वो, जी प्लस CUT जैसे मैंने बोला एक वन ऑफ द एग्जाम है, correct. सो IMS सपोर्ट लाइक पार्ट 1 पार्ट 2 जी पार्ट 3, हम्म प्लान this- B भी उसका हाँ, रेडी करते हैं। अच्छा
क्लासेस के साथ साथ जो बैक हैंड सपोर्टिंग होती है, लाइक चाहे बेसिक फॉर्म फिलिंग हो, करेक्ट गाइडेंस हो, जी फिर पीआई के लिए प्रिपेयर करना, Okay. इवन फिर बच्चे का लेट से रैंक आया है तो सब कौन सा कॉलेज उसे ऑप्ट करना opt चाहिए, करना चाहिए तो एवरीथिंग लाइक फ्रॉम Okay. स्टेज 0 टिल जी he or she get into that dream ओके college. एंड व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स जो आप वहाँ कराते हैं इस चीज़ के लिए Ma'am, like we फॉर have सीयूईटी प्रिपरेशन फॉर नाउ for CUET, like we have multiple programs. Like ओके for 11th class, initial 11th class, we have 2 years program. Initial 12th class, we have 1 year program. Okay. Then we have a crash course also. ओके Like ab wale phase mein we have a जी. crash course. So Okay. we have all the programs. ओके It depends on the student. ओके सो 11 से स्टार्ट करा देते हैं आप बच्चों को Yes, ma'am. और मुझे लगता है मैम जो सबसे ज़्यादा रिजल्ट वाले बच्चे होते हैं ना वो हाँ, 11th से ही आते जी हैं. 12th जो क्रैश कोर्स होता है फाइन, यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स. Correct. और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ, हाँ, यहाँ पर हाँ. भी नहीं होगा. जी पर अगर कोई 11th से कर रहा है जी. तो उसके लिए मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ. इजी टू गो हो जाता है हाँ, ना कि easy बच्चों to की go हो काफी जाता है. प्रैक्टिस चलती प्रैक्टिस हो उस जाती है, time उस पर से. कोई बर्डन नहीं रहेगा. वो अपने बोर्ड अपने कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन को मैनेज कर जी. पाएगा. जी तो उसके लिए एक वो अलग चीज़ हो जाता है that ये शॉर्ट वाला स्टूडेंट. करेक्ट पर ऐसा नहीं है. जी और कहीं ना कहीं उनको मतलब 11th का भी थोड़ा सा जो सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है साइमल्टेनियसली जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 11th का भी सिलेबस आता है सीईटी के एग्जाम में पूछ लेते हैं तो वो चीज़ भी आप ब्रश अप करा देते होंगे साथ में एंड 12th का कंप्लीट सिलेबस आगे टेकअप करते यस मैम. और मैम सबसे इम्पोर्टेंट है वो पढ़ने का तरीका सीख जाता है. आपकी अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है हैं जी तो आप चाहे आप 11th कर रहे हो 12th कर रहे हो हाँ तो आपने अगर एक बार वो पिक कर लिया करेक्ट तो फिर इशू नहीं आता. जी सो वो आप जितना अर्ली सीख जाओगे उतना जी. जल्दी आप कंपटीशन क्रैक कर. अच्छा एंड व्हाट इज द सीट इनटेक इन द आईएम्स मैम आईएम्स में आप देखोगे टॉप नॉच आईएम्स हैं. जी अभी जो आईपीएम का जो प्रोग्राम है आईएम इंदौर, तो वहाँ पर इनिशियल सीट्स आपको 150 250 अराउंड मिलेगी. ओके पर आईएम इंदौर जो है जी उसका जो स्कोर कार्ड है वो और आईएम्स में भी वैल्यूएबल होता है. ओके लाइक हाँ जैसे आईएम रांची है जी वो आईएम इंदौर के एग्जाम से ही आप जा सकते हैं. Correct. अभी आईएम अमृतसर ऐड हुआ है तो वो भी उसके थ्रू हो गया. ओके देन वी हैव मेनी नॉन लाइक आईएम्स जो जी. मतलब टॉप नॉच भी स्कूल है, करेक्ट आईआईएफटी काकीनाडा एंड ऑल. हाँ हाँ तो वो भी आईपीएम जो आईएम इंदौर का एग्जाम होता है उसके थ्रू. उसके थ्रू क्रैक होता है तो अगर आप ऐसे देखोगे जी होलिस्टिकली वी हैव गुड चंक्स ऑफ सीट्स. ओके सो कैन अ नॉन मैथ स्टूडेंट आल्सो अप्लाई टू सीयूईटी मैम उसके लिए? यस मैम सीयूईटी में लाइक इट्स डिपेंड ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट जी. वो कौन से सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहता है. ओके अगर लेट से ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट है उसे लेट से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करनी है तो मैथ्स रिक्वायर्ड नहीं है. बट एट द सेम टाइम आपको लाइक इको ऑनर्स करना हाँ है, जी. आपको बीएमएस करना है, बीबीई करना है, बीएफआईए करना है, तब मैथ्स इंपॉर्टेंट. इम्पोर्टेंट है तो वो डिपेंड करता है आप सीयूटी का कौन सा कोर्स ऑप्ट कर रहे हैं. ओके So for that, maths is required, ओके and in some of the courses, maths is not required. ओके सो इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर यूजी कोर्सेज Yeah, like जैसे अभी मैम कॉमर्स में कंफ्यूजन हुआ था. जो एनटीए ने जब अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डाला तो उन्होंने जी. बोला कि फॉर बीकॉम ऑनर्स मैथ्स इज कंपल्सरी. बट अभी जब ड्यू ने अपना बुलेटिन रिलीज अच्छा. किया जी तो उसमें लिखा हुआ है दैट या तो आप मैथ्स से कर सकते हो या फिर आप अकाउंट से कर सकते हो. इट मैथ्स Okay. इज नॉट कंपल्सरी. सो फॉर बीकॉम ऑनर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी हाँ हाँ you can just either take one language, जी either maths or accounts, Okay. 2 of the other domain subject, and you are eligible. क्योंकि यूजुअली क्या होता है 10th के बाद वो बच्चे मैथ्स ऑप्ट नहीं करते जिनको अकाउंटेंसी में नहीं जाना या ह्यूमैनिटीज में चले गए ठीक है दे जस्ट प्रेफर नॉट गोइंग फॉरवर्ड विद मैथ्स But ma'am, at the same time, like our new education policy says, आप combinations ले सकते. दे सकते हैं Humanities student can also opt for Correct. maths. तो मुझे लगता है कि ठीक है, like it's up to the student. Do we need to fill in a separate CUET form for IIMs both Gaya and IIM Jammu? Ma'am, for IIMs both Gaya and Jammu, we have a different exam. अच्छा हाँ, वो CUT के थ्रू नहीं होता. जैसे मैंने बोला ना, CUT is one of the exam. अच्छा Like for IIMs, जी IIMs के लिए IPM इंदौर हो गया. अच्छा हाँ है ना? ठीक है उसके बाद रोहतक का जो होता है IPM प्रोग्राम वो अपना
फॉर्म अलग रिलीज होता है उसका. Okay. एंड देयर इज वन एग्जाम कॉल्ड एज जिपमैट. Okay. जिपमैट एनटी ही कराता है वो एग्जाम भी. Okay. वो उस एग्जाम से आप एलिजिबल होते हो फॉर जम्मू एंड गोवा. Okay. सो टेक्निकली 3 एग्जाम हो गए अलग अलग. रोहतक अलग हो गया, जी. इंदौर अलग हो गया, Okay. एंड बोथ जम्मू अलग. जम्मू अलग हो गया. पर होलिस्टिकली सिलेबस में हल्का सा वेरिएशन है. Okay. ठीक है. So what are the important topics which are covered in the general aptitude test? मैम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इट कंसिस्ट ऑफ टोटल नाउ एज पर द लेटेस्ट पैटर्न 50 क्वेश्चंस. Okay. Time limit is 60 minutes. Okay. And in this 50 question, there will be a section of basic QA, that is quantitative technique, जी. जो हमने क्लास 10 तक की मैथ्स पढ़ी है. Okay. एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, Right. रेशियो प्रोपोर्शन, Okay. बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब क्लास 10 लेवल. वी हैव बेसिक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन दिस, जी. जो मेंटल मैथ्स होती थी हमारे स्कूल में. Correct. एंड वी हैव जीके एंड करेक्ट. Okay. लेकिन इसमें हम सब्जेक्ट इस तरह से मतलब डिवीजन नहीं है कि 50 क्वेश्चन में 20 इसके आएंगे, 30 इसके आएंगे. Okay. इट इज कुछ मिक्स. भी आ जाएगा. हाँ. यस, वो टोटल 50 आई. Okay. एंड क्योंकि लास्ट ईयर तक क्या होता था 60 आते थे वो. जी. एंड स्टूडेंट को आपका 50 अटेम्प्ट करने होते थे. Option. बट नाउ एज आई सेड देयर इज नो option, ऑप्शन. तो आपको 50 अटेम्प्ट करने हैं. टाइम लिमिट इज 60 मिनट्स. Okay. एंड रूल इज से +5 -. Sir, let's move on to a very interesting segment of our podcast. And यहाँ पर मैंने different groups of institute से कुछ information gather किया. Students का query who are 12th standard students, and they have few queries related to CUET exam. And I'll just take my phone and ask the questions. So one set of group is जहाँ पर बच्चे self study कर रहे हैं, and second set of group is the students are from Siddhartha Accounts Commerce and Science Academy, taking forward the questions from the group जहाँ पर बच्चों का self study हो रखा है. So this question is from Sonali. What is the minimum marks required to get admission in good colleges of Delhi University? मिनिमम मार्क्स क्लास 12 का अगर बच्चा है जी. तो अब CUET के बेस पे एडमिशन. Correct. Obviously you have to score well in CUET. हाँ जी. But still I advise student कि at least decent percentage वो लेके आए. जी. 80, 85%, 75% is a decent percentage. Okay. But they have to score good in CUET. Okay, got it. So Sonali, please make a note on this. ठीक है. Next question is from Priya. Is coaching necessary or the students get admission with self-study? Ma'am, the student can crack this exam with Yeah. self-study course. Okay. कोचिंग का रोल आता है अगर उसे जल्दी प्रिपेयर करना है. कोचिंग का रोल आता है अगर उसे अपने आप को टेस्ट करना है, लाइक मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है. Okay. कोचिंग का रोल आता है उसे सिलेबस रिवाइज करना है. Okay. सो कोचिंग हेल्प कर सकता है, आपके पाथ को इजी बना लेता है. Correct. पर ऐसा नहीं है कि अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है हाँ. तो एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता. अच्छा. क्रैक आप कर Okay. सकते हो. जी. कोचिंग का रोल अपनी जगह है जी. एंड सेल्फ स्टडी का रोल अपनी. Okay. Next question is from Daksh. He is asking, can we apply for extracurricular activities without 5 certificates, even though we are good in that field? Ma'am, see, CUET is a ticket हाँ to जी. the university. Okay. CUET में आप क्या अप्लाई करते हैं doesn't matter. Okay. Although in CUET का जब हम फॉर्म फिल करते हैं we have option of NCC HF का. हाँ जी. But it doesn't matter. Because होता क्या है, once you score once you get a result of CUET, then जी you sir. apply to different university. Okay. For example, you applied in Delhi University. जी. तो अब आपके PCA का रोल आएगा, that is extra. Extracurricular. Okay. अगर आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सर्टिफिकेट है Okay. तो मैं स्टूडेंट से एडवाइस करूंगा कि अगर आपके पास लास्ट फ्यू इयर्स के हैं जी. DU तभी उसे एक्सेप्ट करता है. Okay. लाइक अगर आई सपोज आई एम नेशनल, मैंने किसी गेम में हाँ, खेला है खेला है. तो DU बोलेगा कि अच्छा आपने लास्ट 2 इयर्स में वो कहा है कि नहीं. Okay. स्टूडेंट ही करते हैं 6 में कोई सर्टिफिकेट होता Okay. है हाँ. और वो उसे अप्लाई करते हैं. हाँ. So कहीं ना कहीं आई थिंक यहाँ इसके लिए आंसर इज नो बिकॉज Yeah. ही इज सेइंग दैट विदाउट 5 सर्टिफिकेट्स लास्ट ईयर के. आप तो- लास्ट 2 इयर्स में होना हाँ, चाहिए क्योंकि correct. इवेंचुअली यही होता है ना उल्टी, उन्हें एडवांटेज मिलता है कम हाँ जी. परसेंटेज पे. करेक्ट. लेकिन वो क्यों? क्योंकि आप 11th क्लास में खेल रहे थे खेल रहे थे. राइट. या आपने कोई स्पोर्ट्स अच्छा किया. हाँ जी. ये थोड़ी ना कि आप 6th में खेल रहे. करेक्ट. तो इट्स लॉजिक इज. हाँ. ओके.
So next question is from Diksha. इसका 2 parts में question है. What is the level of difficulty for humanities students? मैम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिफिकल्टी हाँ. इंक्रीज होती Okay. CUT आने से ऑब्वियसली PCM के स्टूडेंट को उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा जी. क्योंकि PCM का स्टूडेंट ऑलरेडी कंपटीशन की प्रिपरेशन करता था, उसे पता था बैक इन माइंड कि Correct. जेई देना है, नीट देना है जी. या मुझे NDA देना है. बट ह्यूमैनिटीज में तो ऐसा कोई कंपटीशन था ही नहीं. Right. उनके लिए चैलेंज क्या है Okay. कि आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव को MCQ में पढ़ना है. And एक बात मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, ह्यूमैनिटीज सब बच्चा वो बुक पढ़ रहा है जिस बुक से UPSC लग के एग्जाम ये बच्चे पढ़ते हैं. Right. वही हिस्ट्री, वही पॉलिटिकल सारी. तो उस बुक में इतनी डेप्थ है Okay. कि वो UPSC जैसे एग्जाम्स को भी मे बी क्वेश्चन सेट हो जाते हैं और फोक्स. Okay. तो डिफिकल्टी ऑब्वियसली इंक्रीज हुई है. Correct. प्लस पढ़ने का अप्रोच ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स को चेंज हुआ है. So the second part of the question is, as the question pattern has changed and now we don't have option to leave questions, how will it impact us? मैम इट विल इम्पैक्ट एज इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन. Okay. पहले स्टूडेंट गेस कर सकते थे कि ओके अगर हम 2 यूनिट भी छोड़ते जा रहे हैं तो हम सेफ है जी. क्योंकि हमने 2 यूनिट मिस कर दिया, छोड़ दिया, हमने बाकी रिवाइज कर दिया. अगर उन 2 यूनिट से क्वेश्चन आते हैं फाइन. बट अब हमें होलिस्टिक सिलेबस कवर है. Okay. तो अगर अब बच्चे के पास ऑप्शन नहीं है कुछ छोड़ने, तो अगर आपने होलिस्टिक सिलेबस कवर किया है तभी आप वहाँ पर अच्छा कर पाओगे. Okay. सो डेफिनेटली दिस ईयर इट विल इम्पैक्ट दी मेरिट. Okay. लाइक लास्ट ईयर में काफ़ी, जैसे BST का मैं लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा 200 थे. Oh, okay. तो अब इस बार वो इम्पैक्ट हो सकता Impact होगा इस चीज़. बिकॉज अब आपको सब कुछ पढ़ना. So the first question is from Hardik, a PCM student. His question is, how tough is the CUET paper? Is it on the level of JEE NEET? No, ma'am, it is not on the level of JEE, and it can't be on the level of JEE. हाँ, Because CUET एक एडमिशन एग्जामिनेशन है. जी. सेंटर यूनिवर्सिटी, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए. Okay. तो ऑब्वियसली वो JEE लेवल तो कभी नहीं हो पाएगा. Okay. JEE अपना कॉम्पिटेंसी चेक करता है. Okay. IIT वन ऑफ द टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स हैं Exactly. उसके लिए. Right. JEE लेवल नहीं है CUET का. बट हाँ, CBSE से थोड़ा ऊपर. ऊपर है. एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, जी. एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज आना चाहिए. देन That's लेंगे it. सीरीज है. Okay. Nice. Thank you so much. So Hardik, I think you would have, get the answer to your query. So the next question is from Harsh, a PCM student. Is there any negative marking in CUET? Should I take risk or avoid guessing? There is negative marking. Right, हाँ, that we know, Definitely avoid guessing. I अच्छा. will say. Okay. But yes, a student should take a calculative guess. Calculative guess as in if you are prepared well, you know certain options. Like Okay. अगर एक क्वेश्चन है वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, 2 का पता है कि ये 2 नहीं, then you can take calculative guess. हाँ. But again, it is not for complete paper, just for Right. 2-3 questions. Okay. But ठीक. yes, I will say that avoid guessing, work more on conceptual clarity. Right. So next question is from Arjun, a commerce student. He says that my school teachers say to focus on boards, but CUET is also important. What should I do? Technically, a student should focus on both the things. अच्छा. Boards का भी importance है जी. and CUET का भी. हाँ जी. And if somebody prepare for boards, तो आप देखोगे ना 80% सिलेबस तो कॉमन ही ऐड होंगे. Okay. तो ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स के लिए आपको अलग से कोई प्रिपरेशन करनी है. Okay. तो दोनों पैरेलली करे जा सकते हैं. Okay. लेकिन जैसे मैंने इनिशियली बोला, जिसे अवेयरनेस हाँ. जो पहले से स्टार्ट कर. Correct. प्रॉब्लम होती है कि हम स्टार्ट लेट करते हैं, तब हम कंफ्यूजन में आते हैं कि अब CBSE करें, अब बोर्ड्स करें. लेकिन अगर कोई बच्चा 11th में है, उसे बिल्कुल क्लियर है जी. these are the exams I have to write, तो उसके लिए कोई इशू नहीं. उसके लिए बोर्ड भी इजी है, सिर्फ भी इजी. सो बच्चों, बोथ द थिंग्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. तो आपको दोनों पे फोकस करके चलना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रणव. ही इज आस्किंग, बोर्ड इज गिविंग CUET मैंडेटरी. व्हाट रोल डज बोर्ड एग्जाम मार्क्स प्ले? ना बोर्ड एग्जामिनेशन मार्क्स प्लेज अ वाइटल रोल. इन फैक्ट इन CUET आल्सो, हाँ. अगर किसी बच्चे का क्लैश होता है ना, जी. स्कोर CUET कोर्स लाइक स्कोर क्लैश हुआ है, तो फिर बाद में उसकी डेट ऑफ बर्थ और बोर्ड परसेंटेज का रोल आ जाता अच्छा. है. एंड स्टिल आई फील इररिस्पेक्टिव कि बोर्ड्स, ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स परसेंटेज काउंट नहीं हो रहा है, जी. बट बोर्ड की परसेंटेज आपका रिज्यूम बिल्डिंग में हेल्प करता है. बोर्ड का परसेंटेज ये शो करता है दैट व्हाट काइंड ऑफ
स्टूडेंट यू आर थ्रू योर एकेडमिक, एक आपका एकेडमिक जर्नी शो करता है, तो बोर्ड का इम्पोर्टेंस है। ओके तो ऐसा नहीं है कि उसका इम्पोर्टेंस नहीं है, जी बट अगेन एडमिशन प्रोसेस में थोड़ा रोल अब डाइल्यूट हो गया है, Correct. बट स्टिल इन अ लॉन्गर रन Right. बोर्ड का आप पीआई में जाते हैं, हाँ जी। पीडी पीआई होते हैं, जैसे आईएम्स में मैंने बोला पीआई होता है, तो पीआई में अगर कोई 95% वाला बच्चा है तो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट अ इम्पैक्ट। करेक्ट या सो वो एक चीज़ है, जी। रोल अपनी जगह दोनों का है। Okay. Thank you so much for the answer, sir. I think it will really help the students जो पूछ रहे हैं, जिनका query है. And the last question is from Pooja. What are my options if I don't score well in CUET? As I said, ma'am, that CUET is one of the exam. हाँ Suppose अगर CUET किसी ने प्रिपेयर किया, उसने जनरल Correct. टेस्ट भी प्रिपेयर किया, जी गॉड फॉरबिड कि अगर उसका ड्रीम कॉलेज नहीं है हाँ तो उसके बैकअप अच्छे हो जाएंगे, वो आईपी में अच्छा कॉलेज क्रैक कर सकता है, जैसे मैंने बोला और यूनिवर्सिटी है, Correct. सिम्बाइसिस, क्राइस, वो वहाँ पर उनके एंट्रेंसेस क्रैक कर सकता है। सो सीयूटी में नहीं हुआ, फाइन, यू हैव मेनी अदर ऑप्शंस, करेक्ट प्रोवाइडेड आप सिलेबस अच्छी तरह रेडी करो, जी अपने एप्टीट्यूड को बिल्ड करो, हाँ जी। अपने ऑप्शंस बढ़ा के करेक्ट। सर आप कुछ बच्चों के लिए सजेस्ट करना चाहेंगे फॉर फर्दर CUET प्रिपरेशन को लेके? फॉर स्टूडेंट आई विल जस्ट से दैट एंजॉय द प्रोसेस। आप एग्ज़ाम का प्रेशर ना लो, बेसिक्स पर काम करें, रिविजन्स पर फोकस करें, और एक CUET इज़ वन ऑफ द एग्ज़ाम, यू हैव मैनी अदर एग्ज़ाम्स, सो जस्ट डोंट टेक प्रेशर, बिलीव इन योर सेल्फ, एंड आई रियली विश बेस्ट ऑफ लक to every student. Thank you so much, sir, for giving your time. I really appreciate that for sharing your, you have shared so much insights with us on this topic. And this would be really a big help to all those who are, preparing for CUET exam. So, आप अपने पेरेंट्स के साथ बच्चों मिलके ज़रूर ये पॉडकास्ट देखिएगा. It will truly help you a lot. Thank you for tuning into the episode of Education Insights. If you have any questions or comments, please feel free to reach out to us. Do join us next time for another informative episode. Till then, stay healthy and keep shining.